Jainism and Buddhism. This is your chapter number 3rd in history portion. In this chapter we have discussed about that birth of Jainism and Buddhism, what was the causes behind the started the two new religious sects, and what was the political background behind the Jainism and Buddhism. Before that we have discussed about the Vedic case. You know that in Vedic case so many social evils practiced by the Aryans, rigid caste system, and so many other practices in the Vedic religion. So Vedic rituals and Vedic rigid caste system were very important and very restriction forceful by the Aryans to the common people. So many of the common people are not feeling well during the Vedic age. So in 6th century, if you see that in your book, the birth of Jainism and Buddhism during 540 to 487 BC marked the beginning of religious reform movements. Actually, Jainism and Buddhism both are a religion, but both are started the religious reform movements in India and many other part of the world, because these had arisen as a sort of restriction to evil practices in the Vedic religious and society, because in Vedic religion and society so many restrictions to evil practices was going on during the time of the Vedic age. Okay, so political background, actually during the 600 to 400 BC the Aryan were able to set up a small states called जनपद. 600 से लेकर 400 BC का जो टाइम था उस समय तक आर्यंस भारत में कई सारे स्टेट्स डेवलप कर चुके थे. जो स्मॉल स्टेट थे उनको हम जनपद बोलते थे, एंड सम ऑफ दीज कंकर्ड द नेबरिंग टेरिटरीज सेट अप अ महाजनपद. और कुछ ऐसे स्टेट थे जो अपने पड़ोसी राज्यों को कंकर्ड करके उस पर कब्जा जमाकर एक बड़े बड़े महाजनपद के रूप में सामने आए. These were 16 in number. Total number of Mahajanpad into the 600 to 400 BC, total 16 in numbers. कुल महाजनपदों की जो संख्या थी उस समय वो 16 हुआ करती थी. The remain continuous war with each other. और लगभग सभी जनपद अपनी पावर और पोजीशन को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से वॉर करते रहते थे. फाइनली ओनली 4 महाजनपद वर लेफ्ट. और कुल मिलाकर फाइनली केवल 4 महाजनपद ही बचे. It was against political background of struggle for power and political murders. कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 600 सेंचुरी से लेकर 400 सेंचुरी का समय था, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड के रूप में यूनिटी का अभाव था, लैक ऑफ यूनिटी. मेनी ऑफ द रूलर्स फाइट टू ईच अदर फॉर स्ट्रगल फॉर पावर एंड पॉलिटिकल मर्डर. इन द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एराज. उसी समय भारत के उत्तर भारत में जैनिज्म और बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ. बोथ महावीरा एंड बुद्धा थॉट दैट स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर वाज नो वे टू अटेन ट्रू नॉलेज. दोनों ने इसका विरोध किया, महावीरा और बुद्धा. लॉर्ड महावीरा स्टार्टेड द जैनिज्म एंड लॉर्ड बुद्धा स्टार्टेड द बुद्धिज्म. बोथ आर अ रिलीजियस, बोथ आर अगेंस्ट द फाइट वॉर, and they also see the struggle for political power was no way to attain the true knowledge. Then after, what was the causes behind the Buddhism and Jainism? If you see that following reasons were the main causes of the rise of Jainism and Buddhism. Students, जैनिज्म और बुद्धिज्म को स्टार्ट होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं. अगर हम बात करें तो सबसे पहला रीजन यही होता है रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट इरेशनल वैदिक रिचुअल्स. जो वैदिक रिचुअल्स थे उसमें कई तरह के रिस्ट्रिक्शन थे, और ये रिस्ट्रिक्शन ही कहीं ना कहीं एक नए धर्म को शुरुआत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज बने. करप्शन एंड इविल्स प्रैक्टिसेस इन वैदिक रिलीजन. काफ़ी करप्शन हो चुका था, काफ़ी एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी जो कि वैदिक रिलीजन में हम देख ही सकते हैं. लाइक दैट कास्ट सिस्टम, like the division of society, Brahman, Kshatri, Vaishya and Shudra. Each and every caste always try to do to increase their power, and other caste
considered as an inferior in their eyes. Second, rigid caste. Third, rigid caste system is also reason for the rise of Jainism and Buddhism. So Jainism and Buddhism started behind that so many important reasons. Difficult language is also very important causes for the Jainism and Buddhism, especially the Aryans used the Sanskrit language. The common people not able to understand the Sanskrit, so they face the difficulty in language. Political turmoil, struggle for powers, constant war, and consequent death. These all are also very important causes for the Jainism and Buddhism. एनिमल सेक्रीफाइसेस, आर्यंस के समय में या वैदिक एज के समय में जानवरों की जो बलि चढ़ाई जाती थी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जैनिज्म और बुद्धिज्म के फॉलो करने के लिए, आने के लिए. एनिमल सेक्रीफाइसेस एडवर्सली अफेक्टेड एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी. एनिमल सेक्रीफाइसेस जो किया गया एडवर्सली अफेक्ट किया एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को. इसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ. सबसे पहले जैनिज्म आता है और जैनिज्म के जो फाउंडर थे 23rd तीर्थंकर, बिफोर दैट महावीरा. कुल जैनिज्म में 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर जो थे वो 24 तीर्थंकर थे. इसीलिए फाइनली तीर्थंकरों की अगर हम बात करें तो जो ऋषभ जो थे, ऋषभ वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, वाइल महावीरा वाज द 24th तीर्थंकर एंड आल्सो द लास्ट वन. महावीरा वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. यस, वर्धमान महावीरा पूरा नाम था इनका. जैनिज्म को जो फाउंडर के रूप में इनको हम मानते हैं, वर्धमान महावीरा को. महावीरा वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. देयर वर 23 तीर्थंकर बिफोर द महावीरा. The first Tirthankar was known as Rishabdev. Tirthankar means a sant. What is meaning of Tirthankar? A sant. A sant with a divine power. एक संत जिसके अंदर क्या हो? Divine power. Okay. Now life of Mahavira. Life of Mahavira very important. Vardhaman Mahavira was born at Kundalgram near Vaishali in Bihar. वर्धमान महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था जो वैशाली में है, और वैशाली कहाँ पर है? बिहार में है. इन अबाउट 599 BC. हिज फादर सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, वॉज द चीफ ऑफ द जंत्रकास क्लैन ऑफ छत्री. ये देखा जाए तो इनके फादर एक चीफ जंत्रिका क्लैन के थे जो छत्री वंश के थे. हिज मदर त्रिशला बिलोंग टू पावरफुल लिच्छवी ट्राइब, और उनकी माता जो थी मदर त्रिशला थी जो लिच्छवी की पावरफुल राजा के घर की लड़की थी. ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस कॉल्ड यशोधरा. ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस कॉल्ड यशोधरा. लॉर्ड महावीरा या वर्धमान महावीर की शादी एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ. दे हैड अ डॉटर कॉल्ड प्रियदर्शनी, और उनकी एक बेटी भी थी, एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था. किसकी? महावीरा की. एट द एज ऑफ 30 वर्धमान गेव अप द लाइफ ऑफ ईज एंड कंफर्ट. ही लेफ्ट हिज प्लेस इन द सर्च ऑफ ट्रूथ. 30 ईयर के बाद महावीरा को जीवन के रहस्य के बारे में जब जानकारी लेनी हुई तो उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया. किस चीज़ के लिए? सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई क्या है. ही स्पेंड नेक्स्ट 20 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन मेडिटेटिंग. लगभग 12 साल वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहे. एट द एज ऑफ 42 ही गेन द ट्रू नॉलेज, और जब उनकी एज 42 ईयर हो गई तो उन्हें ट्रू नॉलेज मिला. ऑन दिस ही केम टू बी नोन एज द मास्टर ऑफ कैवल, और तभी से उन्हें क्या कहा गया? ही केम टू बी नोन एज द मास्टर ऑफ कैवल्य. कैवल्य का मतलब होता है द हाइएस्ट नॉलेज. द हाइएस्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन. द हाइएस्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैन tradition is known as the Kaval, means true knowledge. He getting the true knowledge or the Mahavira. Then after great hero, he known as the great hero. He was also heralded as the Jinnah or the conqueror of the self. खुद पर विजय प्राप्त करने वाले महावीरा को एक टाइटल मिली लॉर्ड महावीरा. दैट
इज़ वाई हीज फॉलोअर आर कॉल्ड जैन्स, और तब से उनको मानने वाले लोगों को जैन मुनि कहा जाने लगा या जैन धर्म का माने जाने लगा। महावीरा डाइड इन पावा, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो पावा में हुई। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन साउथ बिहार इन 527 BC at the age of 72 years when his fame had spread far and wide. So dear students, today we discuss about that what was the causes behind the Jainism and Buddhism, and then after short introduction about life of Mahavira. Okay, after that we have discussed about that what was the main beliefs and teaching of Lord Mahavira. Thank you.